ओके, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, sir. ओके, so so far we have already covered these topics. ठीक है, and now we are going to see these table operators. In table operators में there are different type of operators are there. So number one is arithmetic operator, then comparison operator, logical operator, bitwise operator, assignment operator, and some spatial operators. Right. So as you all know, first of all there is arithmetic operator. Arithmetic operator everybody knows क्या होते हैं, right? So I'll just introduce. सबसे number one is arithmetic operator. Arithmetic operator, right? In arithmetic operator we have normally plus, minus, multiplication, and division. After this, there is operator of this. Then there are multiple, like there is flow modulo, floor division, and exponent. Okay. So modulo, floor division, and exponent. Right. So what these operators are? ये पहले चार ऑपरेटर तो सबको समझ में आते हैं, plus, minus, multiplication, and division. Modulo operator gives us the value of remainder, right? So this is uh, modulo, right? So suppose we have value, suppose val1 is equal to, suppose 56 is there, and val2 is equal to, this is 10, right? So when we are using this operator, print modulo of val1 and val2, right? So here we can write it like val1 modulo val2, right? So what this will return is, it will return, oh, sorry, this is hash. Let me make them comment, right? So you can see this is 6 means this is the remainder of 56 divided by 10, right? So you will get the remainder as 6, that is modulo, right? In the same way, we have the floor division, right? So floor division, what it refers is, now when you will divide 56 by 10, it will not be divided completely. And that's why we are getting this remainder as 6, right? But when what is the coefficient of, what will be the coefficient of this? This is 5, right? Normally, if we do normal, like if suppose there is calculator. Normally, if we divide 56 by 10, it gives us 5.6, right? So in 5.6, this 6 is the remainder, because we are dividing by 10. So it is evident that 6 will be the remainder, right? Now this 5, this is the base value of this 5.6, right? So that's what we are getting as output over here, right? So suppose if we have value, we divided by 12. Now we are getting 4.66667. This is what we are getting, right? So out of this 66667, this will not be the modulo value, right? For example, if we do this, we change this value by 12. So you can see this value is 8, and this value is 4. Means 12 fours are 48, and the remainder becomes 8, right? So that's what 8 is coming over here. So do not get confused कि यहाँ पे 5.6 आया तो 6 मॉड्यूलो में चला गया और 5 floor division में चला गया. It's not like that. It's actually, and the remainder will go into the modulo, and the coefficient will go into this floor division, right? Coefficient without the decimal points is the will be the floor division, right? So here this is the coefficient without the
decimal part. This is the answer of floor division, and remainder is what is now whatever value we have received. Okay, any doubt? Any doubt in this? Is it clear to everyone? In the same way, there is a value called exponent, right? So exponent value, um, exponent, right? And if we take exponent of 2 to the power of suppose 4, right? And here 2 to the power of 2 to the power of 4, right? So 2 to the power of 4 is 2 to the एक्सपोनेंट सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंट दूसरा होता है यहाँ पे डबल स्टार रहेगा राइट दिस इज पाइथन सो डबल स्टार and will get value as 16 so 2 to the 4 to the 8 to the 16 ठीक है right so this is the exponent value will get so by any calculation you can do this and you can understand कि इनकी values क्या होती हैं is it clear to everyone यस सर। हाँ इजी है नॉर्मल चीजें हैं कोई इसमें बहुत बड़ी अम, बड़ी चीजें नहीं है दूसरा आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर सो व्हाट इज द दिस कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर मींस इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड not equal to right so all these are comparison operators right so comparison operator जहाँ पे भी हम यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम दो दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं राइट सो जब भी हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है सो हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं यू वी ऑल नो कि कैसे इनको हमें यूज करना होता है तो ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है सिंपली बस यहाँ पे आप देख सकते हो दो वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन की गई है और उनको बस यहाँ पे चेक किया जाता है कि ये वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं सो बेसिकली सपोज वी टेक वैल 1 comma val 2 is equal to suppose we have taken 5 and 8 and val 1 is equal to val 2 right so it is returning you a false value so basically any comparison operator returns any comparison operator returns the boolean value right ये हमेशा boolean value ही रिटर्न करेगा ठीक है एनी डाउट इन दिस नो सर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा कोई भी हो वो बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा जैसे अगर यहाँ पे वैल वैल 1 नॉट इक्वल टू वैल 2 अगर हम लेते हैं सो क्या रिटर्न होगा सो ये ट्रू रिटर्न करेगा अभी यहाँ पे क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है इसलिए ये आउटपुट को रिप्लेस कर रहा है राइट इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट बार बार यूज करते हैं क्योंकि जब प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो सारे प्रिंट स्टेटमेंट आएंगे वो आउटपुट को रिप्लेस नहीं करेगा अभी अभी यहाँ पे दो आएंगे तो ये पहला वाला फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट है देन दूसरा वाला सेकंड स्टेटमेंट का आउटपुट है राइट इसी इसी तरह से आप ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इस तरह से चीजें कंपेयर करके देख सकते हो राइट सपोज इफ वी टेक प्रिंट val 1 is greater than val 2 so yes then print val 1 is less than val 2 it will show true ठीक है so whenever you are using any kind of comparison operator then you will get the output as boolean value only so boolean value क्या है या तो true है या false है एंड ट्रू ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है
capital T remaining small, then small f remaining small, capital F then remaining small, right? So that's what is true and false value. ठीक है? Any doubt in this? Then इसके बाद आता है सर हमारे पास एक डाउट है सर। क्या इंक्लूड है? सर एक डाउट है छोटा सा। हाँ हाँ पूछो। सर अगर हमारी वैल 1 और वैल 2 अगर इक्वल वैल्यूज है सर, तो इसमें हाँ से अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो क्या हाँ आएगा सर हमारा, मतलब ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देखो देखो वैल 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल 2 और हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या आता है। आ रहा है? ठीक है सर। ठीक है, तो जहाँ पे भी जैसे भी चीजें होंगी तो वो उसके अकॉर्डिंग ही दिखाएगा। तो अब यहाँ पे अब देखो केवल इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में और लास्ट स्टेटमेंट में ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, नॉट इक्वल टू में भी फॉल्स आ रहा है, ग्रेटर देन में भी फॉल्स आ रहा है, लेस देन में भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम लेस देन इक्वल टू लगाते तो भी ट्रू आएगा, लेस देन और इक्वल टू वैल ट्रू तो भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू तो है ही। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू काम कर रहा है, लेस देन इक्वल टू काम कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ ठीक पे है अगर हम इसको यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। सर। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद तीसरे टाइप का ऑपरेटर होता है, दैट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ये तीन ऑपरेटर होते हैं। तो एंड और नॉट में क्या होता है, बेसिकली जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को एक ही स्टेटमेंट में कन्फाइन करना होता है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। सो व्हेन वी हैव टू इंक्लूड टू or more conditions into the same statement, then उस टाइम पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एक होता है एंड ऑपरेटर। तो अब जब यहाँ पे हम एक से ज्यादा कंडीशन को यूज करेंगे तो एक से ज्यादा कंडीशन में हमें हमें एक से ज्यादा ट्रू या फॉल्स मिलेंगे। तो अगर हम दो की कंडीशन लेते हैं, राइट, तो दो में हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होंगी, या तो ट्रू ट्रू मिलेगा, या फॉल्स फॉल्स मिलेगा, या फॉल्स एंड ट्रू मिलेगा, या ट्रू ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी मिल सकती है, यही चार चीजें मिल सकती हैं। यस सर। ठीक है, या तो हमें ट्रू ट्रू मिलेगा, या फॉल्स फॉल्स मिलेगा, या फॉल्स ट्रू मिलेगा, या ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी, तो जहां दोनों ट्रू हैं, तो एंड कंडीशन क्या करेगी? एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? और एंड का मतलब है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू टेक एडमिशन इन फर्स्ट क्लास, देन योर एज शुड बी 6 years and you must have passed the UKG. Is it clear? अगर उसने यूकेजी पास नहीं किया है, या उसने उसकी एज 6 years नहीं है, दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है, इट रेफर्स की इट इज नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हर बार फॉल्स ही रिटर्न करने वाला है।
ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से दूसरी होती है और कंडीशन। तो और कंडीशन में क्या होता है? और कंडीशन में ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज सब जब दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा। राइट? समझ गए? हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. So what we are going to do over here is कि जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब तो ट्रू हो, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी फॉल्स होगा। रेस्ट ऑल कंडीशन में ये ट्रू होगा। अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा। राइट? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज if a candidate has done either 100% attendance or candidate has achieved the 1 lakh of sales, दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो उसको बोनस का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर दोनों ही कंडीशन में वो फेल हुआ है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है कि या तो उसने 100% अटेंडेंस अचीव करी हो या उसने 1 लाख का टारगेट हिट किया हो। दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। राइट? तो यहाँ पे जब दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू है, यहाँ एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है तब भी ट्रू है। जब वो ना तो उसके 100% अटेंडेंस है ना ही उसने 1 लाख का जो टारगेट है वो हिट किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है? और तीसरा इसमें आता है, तीसरा आता है क्या? नॉट। तो नॉट क्या होता है? जो भी करंट कंडीशन है अगर ट्रू है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा विदाउट एनी कंसर्न, एंड अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज दिस इट्स प्रॉपर्टी। राइट? इसको हम यहाँ पे मार्कडाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? यस, नो? अभी ये सब एक लाइन में चला जाएगा। ओके, तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, सो सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिया हुआ है? अच्छा, यहाँ पे बस यही लिया हुआ है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल एग्जांपल क्या लें हम? सपोज यहाँ पे हमने दे दिया एज इज इक्वल टू 18। यहाँ पे दूसरे में करते हैं, ये तो हमारा मार्कडाउन है। हम दूसरे में करते हैं। सो सपोज यहाँ अपने वेरिएबल एरिया एज इज इक्वल टू 19 एंड इनकम इज इक्वल टू 20,000। राइट? अब यहाँ पे चेक किया कि या तो एज उसकी 18 साल से ऊपर है। सो यहाँ पे इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और income is greater than 20,000, then and यहाँ पे प्रिंट किया this person is
eligible for tax, right? Else print this is not eligible for tax. Okay, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे हमने इसको रन कराया। ओ, यहाँ पे कैपिटल ए, हाँ कैपिटल, ये भी कैपिटल है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान बहुत रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर टैक्स, मीन्स यहाँ पे ये एज 18 से ज़्यादा है और इनकम 20,000 से ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हमने और कंडीशन लगाई। और कंडीशन का मतलब क्या है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, प्रिंट एज इज ग्रेटर देन 18 एंड प्रिंट एज इज ग्रेटर देन 20,000। तो अगर आप यहाँ पे दोनों का आउटपुट चेक करोगे तो क्या आएगा, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, बट स्टिल इट इज गिविंग दिस दैट ये पर्सन टैक्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो रही है, हमने यहाँ पे और कंडीशन लगाई है। लेकिन अगर हम यहीं पे इसकी जगह पे हम एंड कंडीशन लगाते तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने और की जगह पे एंड कंडीशन लगाई, राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे इसने दिखा दिया दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स, राइट। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये टैक्स के लिए एलिजिबल यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड कंडीशन, और एंड कंडीशन का मतलब है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पे इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी कि आप कहाँ पे आपको और यूज करना है, कहाँ पे एंड यूज करना है। और अगर हम यहाँ पे जस्ट इसी में हम इसका जस्ट अपोजिट लगा देते हैं, राइट, अपोजिट, यहाँ पे हमने कंडीशन वही रखी है, साथ हर चीज वही रखी है, और हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है सिर्फ, ठीक है। हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको दिया, और यहाँ पे इसको भी हमने नोट कर दिया। दोनों को नोट करने, दोनों कंडीशन अपोजिट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको दिया। अभी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप देखोगे, अ, यहाँ पे ये इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये, देन यहाँ पे इसका अपोजिट ये, ठीक है। तो अभी आप देखोगे क्या होगा, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि कंडीशन कैसे वर्क कर रही है और कहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। बाकी चीजें आप अपने आप से इसमें डिटेल में समझ सकते हो। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो हमारे पहले वाला पार्ट का आउटपुट है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंडीशन वही लगाई है, जस्ट उसके पहले हमने नॉट कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे ट्रू से ये फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये फॉल्स था, ये ट्रू में कन्वर्ट हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे आउटपुट अभी भी वही आ रहा है। रीजन बिहाइंड, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है,
यहाँ पे तो आउटपुट ये चेंज हो गया, ये ट्रू से फॉल्स में हो गया, ये फॉल्स से यहाँ पे ट्रू में हो गया, लेकिन यहाँ पे आउटपुट अभी भी वही आ रहा है। इसका रीजन क्या है? एनीबडी? सर क्योंकि इसमें और एंड अभी भी लगे हुए हैं। हाँ, ये और एंड अभी भी लगे हुए हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट। अभी पहले क्या हो रहा था कि ये कंडीशन ट्रू थी, जब ये नॉट नहीं लगाया था तो ये ट्रू थी, ये फॉल्स थी। अब नॉट लगने से क्या हो गया है, ये फॉल्स हो गई और ये ट्रू हो गई। एक भी फॉल्स आया, एक भी ट्रू आया तो क्या होगा, यही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हुआ, अब अगर हम किसी एक में लगा देते हैं, सपोज हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, हमने दोनों में नॉट नहीं लगाया, हमने यहाँ पे क्या क्या किया, ये पहले ट्रू हो रही थी, तो हमने इसमें नॉट लगाया, और इसमें हमने यहाँ से हमने नहीं, ये ट्रू हो रही थी, इसको फॉल्स कर दिया, इसको ट्रू ही रहने दिया, और नहीं, इसमें इसमें नॉट लगा देते हैं, तो जो फॉल्स थी वो पहले से फॉल्स है, और जो ट्रू है उसको भी हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे ये इनकम है, तो ये फॉल्स हो रही थी, और हम यहाँ पे इसको हमने रहने दिया, इसको भी हम इसको हम ट्रू कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे, ये तो ट्रू पहले से ही थी, राइट। तो अभी क्या होगा कि आप देखो कि यहाँ पे दिस इज एलिजिबल फॉर टैक्स, और दिस दिस पर्सन दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स हो गई, और दिस इज एलिजिबल फॉर टैक्स, जस्ट अपोजिट हो गई, राइट। ये कंडीशन समझ में आई कि हमने यहाँ पे क्या किया? सबको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया? डू यू वांट मी टू रिपीट? डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? हेलो? सर ये समझ नहीं आया सर, आपने ऊपर जब नॉट हटाया तो। यहाँ तक, इसके पहले वाला पार्ट यहाँ तक समझ में आ गया था? हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया था। हाँ, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अभी क्या हो रहा था कि पहले ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही थी और ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी, राइट। और यहाँ पे और लगा था, तो उसको एक ट्रू मिलते ही वो इस कंडीशन इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देता था। यस सर। अब हमने क्या किया, जहां पे ट्रू मिल रहा था वहां पे भी हमने फॉल्स कर दिया, ये नॉट लगा के, यहाँ पे ट्रू मिल रहा था तो ये भी सर ये वैल्यू फॉल्स हो गई, और ये वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है ही है हमारे पास। हाँ जी। ठीक है, अब जब दोनों फॉल्स हो गई तो क्या होगा, जैसे ही दोनों फॉल्स होंगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यस सर। करेक्ट। तो उसका आउटपुट क्या आया, दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स। ठीक है, यस सर। यहाँ पे हम एंड यूज कर रहे थे, एंड में हमने क्या किया, ये पार्ट तो हमारा पहले ही हो रहा था, हमारा ये पार्ट फॉल्स हो रहा था, इसमें हमने नॉट लगा के इसको हमने ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, ये यहाँ पे ट्रू दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही अब ये पहले से ही ट्रू था, यहाँ पे भी ट्रू हुआ, जैसे ही दोनों ट्रू हुआ तो एंड कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ये वाला पार्ट रिटर्न करेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो बाकी लोग, बाकी लोग, Yes, sir. एवरीवन एल्स, चिंकी, श्रेया, Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, yes. योगेश, विशेष, योगी, तन्वी, Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया? यस तो सर। लॉजिकल ऑपरेटर को इस तरह से आप ये बहुत यूज होने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताई कि कैसे आप इन चीज़ों को
अप्लाई कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर जनरली कंपैरेटिवली बहुत कम यूज होते हैं, केवल ये इंटरव्यू में पूछने के लिए होता है, बाकी कंपैरेटिवली बहुत इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। सो इसमें बिटवाइज ऑपरेटर में बेसिकली आपके पास यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर होते हैं, तो एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये है बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, देन राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। राइट। तो अब इसमें क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे नंबर दोगे तो वो नंबर पहले आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा। राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 है और एंड 7 दिया है, ये पहले आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो एक बिट में 8 बाइट होते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट होके 11 आएगा, और 7 है ये बाइनरी में कन्वर्ट होके 111 में आ जाएगा। नाउ जब इनको ऑपरेट किया जाएगा तो एंड और ऑपरेटर यूज होंगे इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बिट वाइज ऑपरेटर। राइट। यहाँ पे हमने लिया val1 इज इक्वल टू val1 कॉमा val2 इज इक्वल टू 3 7। राइट। तो 3 को जब आप बिटवाइज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 1 1 आता है, और 7 को जब आप बिटवाइज में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 1 1 1 आता है। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना तो सबको आता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सबको आता है। सर रिपीट कर दो एक बार, कैसे करते हैं? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट, ओके। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जब भी हमें किसी नंबर, कोई डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट मी शेयर दिस एक्सेल। एक्सेल फाइल सबको दिखाई दे रही है? एक्सेल सभी को विजिबल है? यस सर। ओके। सो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के, ये नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो हम नॉर्मल नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें 0 to 9 तक हमारे नंबर्स होते हैं, और इसके बाद जो भी होते हैं वो फिर कंपाउंड नंबर्स होते हैं। ठीक है। सो मान मान लो हमें किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सपोज हमारे पास 12 है। ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, बाइनरी का बेस होता है हमारा, बेस कितना होता है बाइनरी का, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। राइट। तो हम बेसिकली 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। राइट। तो जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहली बार जब डिवाइड करेंगे ये 6 टाइम डिवाइड होगा, और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। फिर से अब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 1। देन 2 को अगेन 1 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, और रिमाइंडर आएगा 1। तो हम किसी भी बाइनरी नंबर को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो 0 ना हो जाए। राइट। और 0 हो जाने के बाद जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला, ये रिमाइंडर हम रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ ले जाके हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसका जो हमें बाइनरी मिल जाएगा 1100। ठीक है। एनी डाउट? नो सर। सबको समझ में आ रहा है, इजी है? ठीक है। एक एक और करके देखते हैं, जैसे 15 है हमारे पास। राइट। तो 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 आएगा। फिर 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 1 आएगा। फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, हमारे पास 1 आएगा। और फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम डिवाइड होगा, और फिर से हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो 15 का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो 1111।
ये आ जाएगा। ठीक है। यस सर। तो इसी तरह से अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो जो जो 7 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? 7 का बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। इसी तरह से जो 3 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? 1 1। ठीक है। एनी डाउट? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? अब इसी में हम यहाँ पे हमारे बिट वाइज जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे इसी बाइनरी नंबर पे नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में जब काम करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा जो बाइट्स बिट्स होते हैं इसको बाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइट में कन्वर्ट करने पे ये हमारा 8 उसमें आएगा। तो जब 8 के फॉर्मेट में लाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसके पहले 5 जीरो लेके आएंगे। तो 0 0 0 0 0 देन 1 1 1। ठीक है। इसी तरह से 3 के लिए क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 एंड लास्ट में 1 एंड 1। ठीक है। 1 यहाँ पे होगा। ठीक है। एनी डाउट? तो ये है, ये हमारा है 7 आ गया और ये हमारा 3 आ गया। अब जब हम इसको बिट वाइज एंड से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? बिट वाइज एंड से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? अब एंड क्या करता है? जहां जहां पे जीरो मिलेगा वहां वहां पे, जहां अगर कहीं भी एक भी जीरो मिल रहा है तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। अगर दोनों वन मिल रहे हैं तो उसको वन वन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो। देन यहाँ पे एक जीरो एक वन है तो इसने जीरो कर दिया। और जहाँ पे दोनों वन मिल रहे हैं यहाँ पे इसने वन कर दिया। ठीक है। एनी यस सर। डाउट? नो सर। तो फाइनली अब जब जो ये वैल्यू आई है इसको जब हम वापस से अम, उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 है हमारा, 1 1 को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3 3। आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। तो बिटवाइज एंड ऑफ 3, 7 एंड 3 इज 3। इसी तरह से बिटवाइज यहाँ पे फिर से देखते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या क्या होगा? तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों जीरो हैं तभी जीरो आएगा, अगर एक भी वन है तो वो वन रिटर्न करेगा। तो ये सब तो जीरो ठीक है, यहाँ पे ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। बिटवाइज और ऑफ 7 एंड 3 इज 7। ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तन्वी, चेंकी, यस श्रेया, सर। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। उपमन्यु, आई एम यस गेटिंग सर। वेरी। यस सर। ओके। ठीक है। तो इस तरह से आप ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो आपको इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो बिटवाइज ऑपरेटर होते ही होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट देखोगे तो दूसरे पार्ट में आपका यहाँ पे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जहाँ पे भी उसको जीरो मिला उसको वन में कर देगा, वन मिला तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर होता है। सो बिटवाइज एक्सऑर काफी बार पूछा जाता है। तो हम एक बार इसको देखते हैं। बिटवाइज एक्सऑर। तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर क्या करता है कि जहां पे भी इसको सेम वैल्यू मिली वहां पे जीरो कर देता है, और जहां पे इसको डिफरेंट वैल्यू मिली वहां पे वन कर देता है। ठीक है। अंडरस्टूड? तो यस सर। बिटवाइज ऑपरेटर एक्सऑर ऑपरेटर क्या कर रहा है? इफ वैल्यू इज सेम इट कन्वर्ट्स टू जीरो, एंड इफ देर आर डिफरेंट वैल्यूज देन इट कन्वर्ट्स टू वन। राइट? तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सेम वैल्यू है तो ये 0 0 0 0 0, यहाँ पे ये दिस वैल्यू विल बी 0 0 0 0 0, और डिफरेंट है जैसे मिली तो इसने 1 कर दिया, बाकी 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 to the power of 2 ये वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर ऑफ 7 and 3 इज 4। ठीक है, यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, इसी तरह से कहीं कहीं पे बिटवाइज एक्स नॉर ऑपरेटर भी होता है। अगर आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए एक नया ऑपरेटर बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज एक्स नॉर। राइट, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बिट वाइज एक्स नॉर ऑपरेटर। तो जस्ट अपोजिट ऑफ बिटवीन बिटवाइज एक्सऑर। तो यहाँ पे बिटवाइज एक्सऑर क्या कर रहा है, अगर वैल्यू सेम है तो 0 कर रहा है, तो ये इसको वैल्यू सेम वैल्यू को 1 कर देगा और डिफरेंट वैल्यू को 0 कर देगा। राइट, तो वो बिटवाइज एक्स नॉर हो जाता है। कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है। वैसे भी जितने भी मोस्टली जो बिटवाइज ऑपरेटर वाले क्वेश्चन हैं ये ज्यादातर इंटरव्यूज के लिए ही ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिकली मैंने, अगर आप सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तब तो प्रैक्टिकली इसके इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, अदरवाइज जनरली यूजुअल लाइफ में बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिर बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो ये क्या करता है, सिंपली जब भी आपको जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करनी होती हैं तो हम यहाँ पे इसको इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। राइट, सो लेफ्ट या राइट शिफ्ट में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 7 है, राइट, तो अब 7 को हमें यहाँ पे बिटवाइज शिफ्ट करना है। सो 7 को हमें बिट बिटवाइज 2 शिफ्ट करना है। राइट, तो ये राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका राइट शिफ्ट। ठीक ठीक है, तो राइट शिफ्ट में क्या है, अब यहाँ पे इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0 0 0 0 0 1 1 1। ठीक है, अब इसको अगर राइट में शिफ्ट करोगे तो राइट में शिफ्ट का मतलब क्या है कि राइट में दो दो डिजिट शिफ्ट होंगे, तो जितनी सारी डिजिट है राइट में, राइट साइड में दो दो शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे, और जब लेफ्ट से आएगा तो लेफ्ट से 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0, और यहाँ पे ये 1 है, यहाँ ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, आगे के तीनों राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बिटवाइज राइट में 2 पॉइंट शिफ्ट हो गया। इसी तरह से अगर इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट। राइट, सो आप इसको अगर यहाँ पे 7 को इस तरह से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इधर से 2 शिफ्ट हो जाएंगे, जो इधर से आएगा तो फिर नया नया 0 आएगा, 1 1 1, देन 0 0 एंड 0। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो 2 बाइट्स, सारी जो डिजिट हैं वो 2 बाइट लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, इसी तरह से राइट साइड में ये राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को कन्वर्ट करके देख सकते हो कि ये वैल्यूज आपकी एक्चुअली क्या आ रही हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, एनी डाउट? सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे हाँ, और कुछ पूछ रहे हो? सर राइट शिफ्ट समझ में आया। राइट शिफ्ट में क्या होगा, देखो अब जैसे जितनी भी ये डिजिट्स हैं, अब यहाँ पे बाइनरी में या तो हमारे पास 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम इनको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट साइड में शिफ्ट शिफ्ट करने में क्या हुआ, ये वाला 1 है, ये 2 डिजिट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ यहाँ पे देखो, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, और इसके पहले अब जैसे ये वाला 0 है तो ये 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 2 शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया,
ये वाला 2 शिफ्ट होके यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट के 2 बचे तो इसमें लास्ट के जो 2 बचे तो इसमें अब नया जो आएगा वो 0 ही आएगा, 1 नहीं आ सकता, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ये शिफ्ट होके पूरा राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर चली गई। तो जैसे ये डिस्कार्ड होंगी तो क्या होगा, वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमारा जो अब जो वैल्यू बची वो क्या है, वो ये 1 हो गई। ठीक है, इसको आप अगर जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसी तरह से जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, सारी वैल्यूज लेफ्ट में शिफ्ट होंगी। तो लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब है कि आपका जो ये 0 है वो यहाँ पे 2 डिजिट लेफ्ट में इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला 0 2 डिजिट लेफ्ट इधर में शिफ्ट हो गया, ये वाला 0 2 डिजिट लेफ्ट लेफ्ट में इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला 0 2 डिजिट लेफ्ट इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला 2 डिजिट लेफ्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला 1, सॉरी ये 1 तीनों। ठीक है, तो ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पे खाली स्पेसेस बचे तो इन दोनों में 0 आ गया। अब इसको जब अब यहाँ पे ये हमारा रेंज से बाहर चला गया तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये अब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इसको जब कन्वर्ट करोगे 2 टू पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 6, सो 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, 24। हाँ 24, 24 एंड 4, 28, Yes. ये वैल्यू 28 आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? सी, ये कोर प्रोग्रामिंग वाली, कोर कंसेप्चुअल वाली चीजें हैं, और इसका यूज आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं करने वाले। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में शायद ही इसका आपको आपको कभी यूज हो, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेते हैं। ठीक सर है, मैंने इसका यूज कर रखा है इनका सर प्रोग्रामिंग लाइफ में सर। हाँ जब आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह में जाते हो तो वहां पे उसका यूज होता है। हाँ वही कर रखा है सर। हाँ, असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करोगे तो वहां पे इसका यूज होगा, डेफिनेटली होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका यूज नहीं करोगे कभी भी। मतलब असेंबली लैंग्वेज चूंकि 0 और 1 पे ही काम करती है, कि वो सिस्टम लेवल की लैंग्वेज है, तो अगर वहां पे असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करोगे, एलपी की चीजें बनाओगे, वहां के प्रोग्राम बनाओगे, तो वहां पे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सारी चीजें होती हैं। वो मैंने भी किया हुआ है, लेकिन वो जब स्टडीज टाइम के लिए टाइम पे कर रहा था तो मैंने इनको इन चीजों को यूज किया हुआ है। बट प्रैक्टिकली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या डेटा साइंस में आप करने जा रहे हो तो शायद ही इनका कभी आपको यूज पड़े। ठीक है उपमन्यु? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सनॉर ऑपरेटर, देन राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। ये 5-6 तरीके के ऑपरेटर होते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है कि आपको आपको आना चाहिए कि कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सबको आता है ना? यस सर। बाकी लोग, तन्वी, राहुल, योगेश, चिंकी, विशेष, श्रेया, यस सर। सबको आता है? श्रेया आपकी आवाज इको कर रही है बहुत। यस सर। ओके, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो लेट मी नो, मैं एक बार वो चीजें भी बता दूंगा। हालांकि दैट इज आउट ऑफ आवर स्कोप, बट इंटरव्यू पर्पज से आपको ये सारी चीजें जरूर आनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू बी गुड इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। सो next we are going to discuss about the assignment operator.
ठीक है, तो आज हमारे ऑपरेटर ही हो पाएंगे, ज्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं। तो जैसे है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहले होता है इक्वल टू, राइट। सबसे पहले होता है इक्वल टू, ठीक है। फिर इसके बाद होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, या मल्टीप्लाई इक्वल टू, या डिवाइड इक्वल टू, राइट। तो उनको हम यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ वैल्यू ए इज इक्वल टू 10, राइट। नाउ यहाँ पे आप देखो a इज इक्वल टू 10 मीन्स यहाँ पे हमने इसको असाइन किया है। अगर हम यहाँ पे एक डबल इक्वल टू 10 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अगर हमने यहाँ पे डबल इक्वल टू कर दिया तो क्या बन जाएगा। हम्म अगर हमने यहाँ पे डबल इक्वल टू किया तो ये क्या बन जाएगा। बोलो भाई, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, अगर हम इसको डबल इक्वल टू करते हैं तो ये क्या बनेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब हम यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू 10 मीन्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ओके, आफ्टर दिस दूसरा क्या होता है, अब हमें सपोज हमने लिखा a प्लस इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस 4, मतलब a की जो भी करंट वैल्यू है उसमें हमें 4 और ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम a को प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 14। यहाँ पे जब हमने इसको प्रिंट किया है, जो इस प्रिंट a प्लस के पहले, तो वो दैट वैल्यू इज 10, लेकिन बाद में इसके बाद ये वैल्यू 14 हो गई। अभी हम यहाँ पे a माइनस इज इक्वल टू 6 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू a-6। तो अब हम यहाँ पे अगर a को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू 14 से घट के 8 में आ गई। इसी तरह से हमने यहाँ पे दिया a मल्टीप्लाई इक्वल टू सपोज 4, तो इसका मतलब क्या होगा, वैसे ही जैसे ऊपर था a इज इक्वल टू a इंटू 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट a, 8 4 जा 32, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है a डिवाइडेड बाय इक्वल टू, एंड हमने दिया सपोज 8, राइट। तो ये यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 8, प्रिंट a, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर समझ में आ गए, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाय इक्वल टू। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है। Anybody, any doubt? कौन है ये, ओके। सो इसी तरह से आप इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर को भी जोड़ सकते हो, इसमें फ्लोर डिवीजन को भी जोड़ जोड़ सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करना, जो भी आप ऑपरेट करना चाहो, यहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर में डाल सकते हो, ठीक है। एंड सो इसके बाद कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर में हमारे पास एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल्स को कंपेयर करने का काम करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कंपैरिजन में हम इनको यूज करते हैं। तो ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है इज और इज नॉट।
ये दो ऑपरेटर होते हैं जो कि हमारे किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल है, सपोज वैर 1 इज इक्वल टू 10 एंड वैर 2 इज इक्वल टू 20। हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रिंट वैर 1 इज वैर 2 और प्रिंट where 1 is not where 2। ठीक है, तो यहाँ पे where 1 is where 2 इसका मतलब है कि दोनों सेम ही लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो उसमें उन दोनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में वैल्यू अलग है, इसका मतलब दोनों एक ही लोकेशन को रेफर नहीं कर रहे हैं, राइट। इसीलिए दिस where 1 is where 2 को फॉल्स रिटर्न किया। इसी तरह से यहाँ पे चेक किया where 1 is not where 2, इसका मतलब क्या है कि where 1 और where 2 एक ही लोकेशन को रेफर नहीं कर रहे, तो दोनों में जो वैल्यूज सेम है वो हमें हमें दिख रही है कि दोनों वैल्यूज अलग अलग है, तो इसका मतलब where 1 where 2 एक ही नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। एनी डाउट? यही चीज आप दूसरे मतलब बड़े डेटा टाइप के साथ में भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू असाइन करके और आप चेक कर सकते हो कि दोनों में वैल्यूज सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट होता है स्पेशल ऑपरेटर्स में मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा इन एंड नॉट इन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर हमने लिस्ट डिफाइन करी है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दिया 56 78 एंड के डी एंड एस डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू, सो वी विल जस्ट चेक प्रिंट 56 इन लिस्ट 1, राइट। एंड यहाँ पे 56, यहाँ पे हम देखते हैं 58 इन लिस्ट 1। इसी तरह से हम नॉट इन भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने दिया 56 नॉट इन लिस्ट 1, राइट। सो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, नाउ यू कैन सी ये भी फॉल्स आ रही है और ये भी फॉल्स हो रही है, क्योंकि 56 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन उसको फॉल्स दिख रही है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू जनरेट हो रही है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे ऑपरेटर है जो स्पेशल ऑपरेटर्स का काम करते हैं, और इनको यूज करके आप कंपैरिजन को भी परफॉर्म कर सकते हो विदाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज किए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सो विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे। हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, आई गेस। मैंने ये फाइल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, 4 नंबर की फाइल है ये। I have already shared this file with you all, and you can take advantage of this, and you can just मैं इसको ये वाली फाइल भी सेव कर लेता हूँ। So this is operators, right? So you can all practice these operators, and then we'll continue with